Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Finally, a new video is here, and please feel like a dated video. I know it's late, but it is the most awaited video of my channel. So finally, it's here, and देरी की माफी चाहूंगी because एक तो मैंने पहले से नहीं देखा था सब एपिसोड्स। मैं एक्चुअली 2 दिन पहले बैठी थी एंड 2-2 घंटे का 27 एपिसोड देखना इट्स टफ एंड अनबायस्ड होकर देखना इट्स टफर। बट एनीवेज आज भी एपिसोड्स आने वाले हैं, मैं वो भी देखूंगी एंड I might make video on that as well. And if you want it, you just need to comment ki you want more episodes. So let us start from the positive aspect of the show, which is the set is so much prettier than the previous one. Like especially the 15th is very better looking set, and Oracle is literally looking like हाँ कुछ calculation करते होंगे because last season में it was looking like क्या ही है, like a soap piece. And the most important and positive aspect was is some female contestant. I think वो मेल contestants पे ज़्यादा content दे रहा है, ठीक है, because I think प्रीवियस भी थे 3-4 थे जो दे रहे थे कंटेंट, लड़ाइयाँ कर रहे थे, बट उनके अलावा आई थिंक मोस्टली ऑल ऑफ देम वर जस्ट ऑन ऑन लाइक द शेडो ऑफ द कनेक्शंस। बट ये साल उल्टा दिखने को मिल रहा है एंड आई एम लविंग इट एब्सोल्युटली. And thirdly, I think Karan is a very good host. Even I like him more than Sunny Leone because my Sunny Leone is बहुत biased and we will talk about that later. ठीक है. But Karan, on the other hand, he is not biased. His hosting is good as well because अर्जुन बिजलानी जो लास्ट ईयर तनुज करके एक होस्ट जो था उनसे तो काफी बेटर होस्टिंग है इनका एंड ही इज रियली हैंडलिंग द कंटेस्टेंट्स वेरी वेल. And I love the clothes of the mischief maker Urfi and Nia. And मुझे निया से बहुत एक्सपेक्टेशन था बट क्योंकि ये इनका फर्स्ट शो है जो वो होस्ट कर रही है, आई थिंक शी इज वेरी मच बायस्ड एंड उनके आने से पता चल गया कि भाई उर्फी इज द ओजी, शी इज द ओजी मिस्chief मेकर. And now let us talk about the not so positive aspect of the show, which is a lot. And as usual, हर टाइम के साथ हर सीजन के साथ there is again few people who already have connections in real life. Like I don't know why, like please maintain some authenticity. Like what is Spitsvilla for? Like please maintain at least that, which is the bare minimum thing that every maker should do for their show. Like Tanshus has already went back to the girlfriend that he had previously, and even Saurabh will do the same, but after 6-7 months when the whole cloud is over, because right now they are trending as hell, like him and his connection on the show Niharika. And literally when it comes to Saurabh and Fiona, but being very unbiased, I don't know कि भाई वो शो में पहले 10 एपिसोड पे कहाँ था, like he was literally उनकी एक वीडियो भी नहीं थी. And that was disappointing because I think he is much better than most of the guys in the villa. Like गुल्लू के लिए इतना डिमांड है तो इसके लिए क्यों नहीं, लाइक अभी तो जो मैं देख रही हूँ ऑन द इंटरनेट ही इज वायरल एंड आई एम विद द ऑडियंस इन दिस. बट starting say everybody saw Yogesh and Himanshu and literally every girl went for them because obviously they are from Roadies and unko makers ज़्यादा screen time देंगे ही देंगे no matter what. So I think that also the reason, and I don't watch Roadies as you all know, so I don't know कि वो कौन है. Now I know them कि था कि Gullu and Yogesh were in the finals and Gullu did something double cross and then Gullu won and Yogesh lost, but still they are friends apparently. भाई Gullu is a walking red flag for sure because he has disrespected Kyra like even at this point I had lost count like that many times. And I don't know क्यों भाई कायरा माफ करती जा रही है. Like she has many options I feel, but I think she knows कि Gullu is a Rory winner, so he has much high potential to win this show as well. And even Gullu knows it. That's why he is doing whatever the hell he wants. And back of the mind he knows कि भाई कायरा हो चाहे को भी वो माफ कर देगी because obviously he is a very strong player. Hey, and I'm hearing a very wild rumor कि भाई योगेश नकाटा जो अभी तक सबसे बेस्ट कनेक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है, उसके बीच में रुडू आके शी विल डू समथिंग विद योगेश एंड द कनेक्शन विल बी डिसकंटिन्यूड. भाई ये क्या सीन है भाई, रुडू का तो खुद का सीजन उसने कुछ उखाड़ा नहीं, ठीक है, तो व्हाई द हेल शी इज कमिंग बैक मैन. ये कौन मेकर से कौन इसको फिर से क्यों ले रहा है भाई. स्पीकिंग ऑफ मेकर्स, ठीक है, नाउ एटलीस्ट वी ऑल नो कि भाई किसके हाथ में किसके हाथ में नहीं. इट्स ऑल इन द मेकर्स हैंड कि जिसको वो एलिमिनेट करना चाहिए वो हो जाएगा. बट एटलीस्ट हाइड इट, नो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस एंड इट इज मेकिंग द शो 10 टाइम्स मोर बोरिंग. कि भाई सब पता है कि जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले कुछ तो होना जाना नहीं है. आई डोंट नो व्हाई इवन contestants are making such strategy and doing all of this task and stuff because why it's complete waste of energy.
Now let us come back to the biasness that I was talking about. Now देखो, it's very evident that she is biased towards Sadaf, and previous seasons maybe she was biased towards Akriti, but उसमें पहले last में जाके she was biased. इस बार very openly starting she is biased, so it's looking very cringe. I literally cringe every single time they do this माँ बेटी वाला मिलाप. Like why? Like are you guys relating कि तुम लोग दोनों इंडियन नहीं हो, फॉरेनर हो, लेकिन इंडिया में करियर बना रहे हो, इसलिए तुम इतने इमोशनल हो, इसलिए तुम अपने ये भरत मिलाप करते हो बार बार. एंड भाई एक बार ठीक है, हर बार लाइक व्हाई मैन, इट्स सो यू नो ridiculously boring to watch it. एट दिस पॉइंट तो भाई जिस जिस एपिसोड में होस्ट में सनी लियोनी नहीं होती, मुझे तो लगता है कि उधर सदफ का स्क्रीन टाइम कम हो जाता है और वो दिखती ही नहीं है. And देखो 100% अंजलि is a pick me, ठीक है. She has literally went to every possible guy who is strong and said की connection बनाने का बाद and paged the guy. But I think सदफ को तो नहीं बोलना चाहिए. Like she has literally stop and दो बोट पे जो पाँव रखने वाली बात है, वही इन्होंने किया था सौरभ के साथ एंड टेन के साथ. तो भाई एटलीस्ट इनको कुछ नहीं बोलना चाहिए whether whatever अंजलि is doing. And I think even with this Tain and Sadafwala thing, I think Tain is just doing for the show, and I think it's very evident. अब ये clear भी हो गया है, but yeah, I think it's very clear कि भाई I don't know सदफ को कैसे समझ में नहीं आई because उतना strong बनती है. And भाई what is this shut up thing every time they have a fight with Susan? Like भाई वो क्यों चुप रही है, वो शो में आई है, तुम कौन क्यों टीचर बन रहे हो, और तुम क्यों मम्मी बन रहे हो उसकी. भाई उसको बोलना बोलेगी, तुम्हारा भाई तुम्हारा सुन के थोड़ी लेगी भाई. It literally boils my blood every time she does that. भाई ये सेम चीज़ उसकी चमची सौंदर्या भी करती है. एंड आई डोंट नो भाई क्यों ये लोग शो में कब निकलेंगे ये लोग शो में. लाइक सौंदर्या को तो फिर भी दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है दीप्तांशु के साथ, बट भाई मेरे से नहीं हो रहा. सदफ से मैं नहीं देख पाऊंगी भाई इसको साथ में. एंड इनका फेक एस कनेक्शन विद टेन, लाइक ऑब्वियसली इसके साथ तो थोड़ा ये लगता है, बट टेन के साथ नो नॉट पॉसिबल एट ऑल. And I literally hate this stain. I don't think so. I hate any other contestants more than this stain guy, because even Gullu, I like Gullu more than Tain. भाई कम से कम वो बंदा फनी है, because ये बंदा तो भाई अपने ही दोस्त को पैसे देने से भाई बैकआउट कर गया. पहले हाँ क्यों बोला भाई अगर तुझे देना नहीं था. एंड भाई उसके बाद ही गोज टू हिज एब्सोल्यूट दुश्मन, चकस्टिप का दुश्मन हिमांशु के पास टू सीक हिज वैलिडेशन. ओ माय गॉड, लाइक व्हाट ऑन अर्थ मैनिपुलेशन गैसलाइटिंग इज दिस. Speaking of the reason that he gave to Himanshu कि वो will be the bottom, then they will target us, by next day ही उसका एक टास्क था, पैसा रिलेटेड टास्क, राइट, पैसा का टास्क जो था. भाई कमा लेता उसमें, दे देता उसको भाई, वो तू भी सेफ हो जाता वो भी सेफ हो जाता. बट भाई क्यों देगा ये, बिकॉज ऑब्वियसली टास्क में किसी की गारंटी तो है नहीं कि जीतेगा नहीं जीतेगा. एंड नाउ कवरिंग इट विद दिस शिट इज excuse I have heard, like it's very lame, like it's really very lame. ट्रक्स के बाद आएगी तो लेट अस टॉक अबाउट हिम ओनली. लाइक भाई तुम बहू ढूंढने आए हो क्या? लाइक पहले ही दिन से ही तुमने भाभी बना दिया सबका अनीशा को. एंड भाई उसको तो पूछ लेता उसको बनना है कि भी नहीं बनना. शी इज रियली एक्सप्लोरिंग वो एक्सप्लोर करना, एंड दैट वाज द होल गेम दैट इज स्पिरिचुअल ऑल अबाउट, ठीक है. तो हाउ कैन यू बी डिसअपॉइंटेड व्हेन शी वाज गिविंग हार्ट्स टू other contestants? Like that is the basic thing that everybody needed to do, and even you needed to do, and even you had to explore, ठीक है. तुम कहाँ उसको लेके बैठ गए भाई. और how can I say कि अनीशा is wrong, because you were literally ऐसा लग रहा था कि you were forcing yourself onto her. ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इसलिए वो बना रही है क्योंकि इसी पहले से ऑन इनटू आयुष, बट इसलिए से बना रही है कि तूने इतना ग्रैंड ग्रैंड जेस्चर ऑलरेडी कर दिया था उसके लिए. एंड अगर वो मना करे तो फिर वो गलत लाइट में दिखती. बट अगेन उसने दो बोट पे पाँव रखा था विच वॉज रॉन्ग, बट इट मेक सेंस बिकॉज चक्सदीप का टास्क, एक टास्क भी उन्होंने सही से नहीं किया था, लिटरली एक टास्क भी, चाहे वो अनीशा के साथ पहले हो या फिर मर्ज के बाद हो या फिर पैसा विला में हो. नॉट अ सिंगल टास्क दैट ही हैज परफॉर्म. उनका सिर्फ एक काम था अनीशा अनीशा करना. भाई तुम बहू ढूंढने नहीं आए हो, लाइक यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर. लाइक इट वाज ओके कि तुमको नहीं करना था, ओके तुमने नहीं किया, ओके मेक सेंस. पर उसको क्यों रोक रहा है, उसको तो करना है ना. इट वाज योर चॉइस टू स्टॉप एंड इट इज हर चॉइस टू एक्सप्लोर. लाइक बट ऑल्सो आई स्टिल अंडरस्टैंड कि चलो कि हाँ पैसा वाला जो तूने लास्ट में नहीं लिया था, दैट सेल्फ हो सकता है, वो ईगो नहीं है फॉर श्योर. क्योंकि मेक सेंस कि अगर वो कनेक्शन नहीं है तो क्यों ही लेना. एंड या दैट्स इट अबाउट टुडेस वीडियो. बहुत लंबा हो चुका है लेकिन मेरे को पार्ट 2. So yeah, if you like it please like it, and that's it. Thank you for watching. Subscribe to my channel.